میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 28 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ بھائی تنویر سے کہوں گا کہ وہ اس آیت کو پڑھیں۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہونی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع کو پہلی دفعہ جو میں دی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی؟ یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا اور سپنج اور زوفہ کیا ہے؟ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع کو جو پہلی دفعہ میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی؟ یسوع کو 2 دفعہ پیش کی گئی، ایک صبح 9 بجے کے قریب، جو پیسہ میں آپ کو ٹائم بتا دیا، رومی سلطنت کے مطابق جو بیان کرنا وہ 3 گھنٹوں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری دفعہ دوپہر 3 بجے موت سے بالکل پہلے۔ متی 27 باب 33 تا 34 آیت بھائی تنویر، اور مرکز 15 باب اس کی 22 تا 23 آیت۔ پہلے آپ متی 27 باب اس کی 33 تا 34 آیت کو دیکھیں۔ متی 27 باب 33 تا 34 میں یہ لکھا ہے، اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اب مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 22 تا 23 آیت، جلدی کیجیے۔ مرکز 15 باب اور 22 اور 23 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور پھوٹ ملی ہوئی میں اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی۔ اب یہ پت اور مر ملی ہوئی میں کیا تھی اور یہ کیوں دی جاتی تھی؟ یسوع کو جب صلیب دینے کے لیے جب مقام گلگتہ پر لایا گیا تو اس سے پہلے اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھوکے جاتے، اسے پینے کے لیے ایک میں پیش کی جاتی ہے جس میں پت اور مر ملا ہوا تھا۔ پت ایک کڑوی اور زہریلی میڈیسن دوائی ہے، اور مر ایک دودھ کی مانند ہے جو جسم کو سن کر دیتی ہے۔ اس کا اثر جو ہے انستھیزیا جیسا ہے، انستھیزیا یعنی کہ میں دوائی جیسا تو سن کر دیتا ہے جسم کو، اور اس سے مجرم کو تکلیف کا احساس جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ رومی فوجیوں کو بھی آسانی ہوتی ہے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یروشلم میں امیر عورتوں کا گروپ تھا۔ امثال باب 6 آیت 31 میں لکھا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو دو جو تلخ جان ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے یہ میں مہیا کیا کرتی تھی، لیکن اس میں مر شامل ہوتی تھی۔ متی کی انجیل کے مطابق انہوں نے پت بھی اس میں ملا دی تھی، جو پت کڑوی اور زہریلی ہوتی ہے، کہ یسوع کے لیے اور بھی اذیت ناک بنا سکے اور اس کا مذاق اڑا سکے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ میں نہیں ہے جو عورتوں نے بنائی تھی، بلکہ یہ رومی فوجیوں اور رومی لیڈروں کی تیار کردہ تھی۔ لیکن جیسے ہی یسوع نے پت اور مر ملی میں کو چکھا تو اسے پینا نہ چاہا۔ یسوع نے اس
को और मुर मिली हुई मैल को इसलिए नहीं पीना चाहा। यीशु नहीं चाहता था कि उसका जिस्म सुन हो, यीशु नहीं चाहता था कि उसको तकलीफ का एहसास कम हो, बल्कि यीशु ने इसलिए इस जो दुआ को नहीं पिया क्योंकि वो शरीर पर मेरे लिए और आपके लिए शरीर का पूरा पूरा दुख बर्दाश्त करना चाहता था। हालेलुया। यीशु को पेश किया जाने वाला सिरका, स्पंज और जूफा क्या है? अब 6 घंटे गुजर चुके हैं। लूका 23 बाब आयत 36 के मुताबिक 6 घंटों के दौरान सिपाही उसे सिरका पेश करते रहे और कहते, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को भी बचा। ये वो तंज के तौर पर उसे कहते थे। क्योंकि यीशु ने अभी तक पानी नहीं मांगा था। अब 3 बजे के करीब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज को डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। जो अब की बार पेश किया गया ये रोमी सिपाहियों के आम तौर पर पीने के लिए होता था। सिरका जड़ी बूटियों और पानी के मिलाप से बनता था। इसको पोस्का बोलते थे। ये हल्की क्वालिटी की मैद जैसा था जो आम तौर पर गरीब ही इस्तेमाल करते थे। हर फौजी के पास अपना ठेला बर्तन होता था जिससे वो सारा दिन अपनी प्यास बुझा सकता था और वक्ती तौर पर अपनी कुव्वत को बुझा सके। और इसमें नमकियात की मौजूदगी जिस्म को पानी की कमी नहीं होने देती थी। यीशु को ये सिरका किसी फौजी ने अपने हिस्से में से दिया। अब शरीर पर लटका हुआ जो शख्स है या शरीर पर जो भी लटका है, ना तो वो किसी गिलास में पानी पी सकता है, ना वो किसी कप में पानी पी सकता है। इसीलिए उन्होंने स्पंज का इस्तेमाल किया। जूफा एक पौधे की शाख है। जब बनी इसराइल पहली ईद फसह पर खून अपने दरवाजों पर लगाया था तब उन्होंने जूफे का इस्तेमाल किया। यहाँ तो वो भर्रा है जो कामिल है, जो बेअहब है, जो पाक है। उस भर्रे की तो खून के वसीला से उनकी वक्ती खलासी हुई थी, लेकिन आज कौम इस्राइल में से जो उस पर ईमान लाया या आज आप में से जो मुझ में से उस पर ईमान लाता है, इस भरने के खून के वसीला से आपकी और मेरी अपनी हमेशा की खलासी होने जाती है। हालेलुया। यीशु ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा और दूसरी बार पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया? अब की बार यीशु ने उसे चखा। उसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह यूहन्ना 19 बाब आयत 29-22 तक पढ़ लेंगे। यूहन्ना 19 बाब और उसकी 29 आयत। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यूहन्ना 19 बाब उसकी 29 आयत। यूहन्ना 19 बाब उसकी 29 आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। लिखा है कि ताकि नविश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। ये नविश्ता ज़बूर 69 आयत 21 में लिखा है कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यीशु ने इसलिए कहा था ताकि नविश्ता पूरा हो। यीशु मसीह कलाम मुकद्दस की तमाम बातों को पूरा करने आया था। हालेलुया। कलाम मुकद्दस का एक नुक्ता या एक शोशा पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता।
सकता था। हालेलुया। दूसरी वजह ये थी कि यीशु को फतह का ऐलान करना था। एक जोरदार ऐलान के तमाम हुआ, इसके लिए उसको ताकत चाहिए थी। ज़बूर 22 और उसकी 15 आयत, अगर 22 पे नहीं पढ़ते, ज़बूर 22 उसकी 15 आयत। ज़बूर 22 उसकी 15वीं आयत। मेरी कुंवर ठीक करे की माने ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे कुव्वत मौत की खाक में मिला दिया। अब 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने के बाद और जिस्मानी तौर पर अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद उसके जिस्म में पानी की शदीद कमी थी। उसका गला खुश्क और ज़बान गोया तालू से चिपकी हुई थी। उसको जोर से बोलने के लिए तर गले की जरूरत थी। उसने वो सिरका चखा ताकि फतहमंदी का जोरदार क्या कर सके, फतहमंदी का जोरदार ऐलान कर सके, जो वहां पर मौजूद तमाम लोग सुन सके। यीशु ने कलाम के तमाम हिस्सों को पूरा किया, क्योंकि वो बाप की मर्जी पूरी करने आया था। हालेलुया। उसको कलाम मुकद्दस की तमाम बातें याद थी। ये प्यास उसके इंसानी पहलू को जाहिर करती है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। उसने ये आपके लिए मेरे अज़ीज़ों बर्दाश्त की, ये प्यास मेरे और आपके लिए बर्दाश्त की। जिस्मानी और रूहानी दुख जो उसने बर्दाश्त की, जो मेरी और आपकी सोचो समझ से बालातर है। आज मेरे अज़ीज़ों, आप किस इंतजार में हैं? आइए अपने शाफी के पास चलें, जिसने सलीब पर मेरे और आपके लिए मोहब्बत, मेरे और आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। उसने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए पूरी पूरी मोहब्बत को जाहिर किया है। मेरे अज़ीज़ों, ये जो मेरे यीशु की जो प्यास थी, वो जिस्मानी तौर पर तो थी, लेकिन साथ में रूहानी तौर पर थी। वो प्यास जो थी वो रूहों की प्यास थी। वो प्यास जो थी मेरी और आपकी प्यास थी। यीशु मेरी और आपकी सलीब पर जिक्र कर रहा था। वो मेरे लिए और आपके लिए प्यासा था। अगर आज आप चाहते हैं कि उसकी ये प्यास कम हो, अगर आप चाहते हैं कि वो प्यासा ना रहे, तो फिर उसके कलाम पर आप अमल करें और उसके साथ चलें, ताकि उसकी प्यास कम हो। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत है।